अरे इसमें तो बच्चे दिख रहे हैं सारे। बेटा इन द मेन टाइम चेंज द डिटेल्स ऑफ योर स्क्रीन। क्लास पहले लिखी जाएगी, अपने स्क्रीन की डिटेल्स चेंज कर लेंगे। ओजस्विन, अभिनव कुमार, आरव रोतगी, क्लास मेंशन करनी है पहले। वैभव, मेंशन योर क्लास। विदुषी कपूर, मेंशन योर क्लास। सार्थक, मेंशन योर क्लास। Okay, Raviraj sir, Anita ma'am, I think we can begin the session now. Yes, We have enough number, a good number of friends. Yes, okay. Anita ma'am, are you there? अनीता मैम अब आई हैं। हाँ, admitted. Jane, mention your class. Okay. Anita ma'am, have you joined now? एक मिनट मैम। अनीता मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। It's done. Yeah, Anita ma'am. Hi, you're with me. Okay. Great. Thank you. Hi. Okay. How are you, ma'am? So, I'm good. okay. So I think we can begin now, Anita ma'am. I think we have got a good number of parents. Okay. Fine. So we can begin. And just before that, I just want to just say a small thing to all the children. Children, this session is majorly for your parents today. तो आज आपकी पढ़ाई का नहीं, parents की पढ़ाई का दिन है. तो I hope your parents are all around. और नहीं है तो फटाफट से उनको बुला लो कि आज बच्चों की नहीं, आज पेरेंट्स की पढ़ाई होगी. सो आज आपकी टर्न है पेरेंट्स का टेस्ट लेना, फिर आप लोग बाद में. तो आई होप यू ऑल द पेरेंट्स आर देयर विद द चिल्ड्रन. ओके, ओवर टू यू अनीता मैम completely. Thank you. Thank you, Nitika. Good morning, everyone. I, Anita Arya, Activity Coordinator of Bharat National Public School,
is here in front of you, and welcome you all in this session. So as you know, being healthy is neither complex nor luxurious. So हमें अपनी हेल्थ को बनाने के लिए हमें जरूरी नहीं है, हमें बहुत लग्जरीज की नीड होती है, और हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज की, बहुत छोटे छोटे स्टेप से, बहुत छोटे छोटे चेंजेस से हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आज हमारे साथ गौरव सर हैं, तो वो हमें बताएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इस चीज को। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न lot many things from Gaurav, because I want to remain healthy and good health and good immunity. Okay, so I know that you all must be very excited too. So before moving further, let's welcome Gaurav sir. Let's welcome Gaurav sir, our honorable guest, who is today with us for the session. So I would like to share about him. Mr. Gaurav is a certified nutrition and fitness consultant from GMFA, California. He is also pursuing a certification in sports nutrition from ISSA US. And he has been a fitness enthusiast since his teen age. And now this thing has become his passion, for which he engages himself in many workshops around the world. He is a professional nutrition consultant for 3 years and a yoga practitioner for last 6 years. Wow, nutrition and yoga. तो हम आज ये सब चीजें जानने वाले हैं गौरव सर से. And he has his own enterprise named as GS Nutri Fitness. And his mission is to impact 1 million lives by improving their fitness. Wow, very nice passion, sir. For which he keeps involving himself in various nutritional programs and sessions for people around the world. And if I talk about his achievements, his learning, his knowledge of nutrition and yoga is not only in India. He is also associated with many clients in other countries like New Zealand, Canada, Nepal, etc. So it's really proud moment for us to have him with us today. And he is also engaged in good client. He has a very good clientage for personal training and yoga sessions. So this way he's spreading his knowledge around the world. And today he is with us to share a few steps, a few knowledge about how we can keep ourselves healthy and improve our immunity. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. गौरव सर को बोलते हैं कि सर आप सेशन स्टार्ट करिए. अनीता मैम को ज्यादा नहीं बोलने देना हमने. तो गौरव सर, over to you now. Welcome. Okay, before that, let's welcome him by giving a big round of applause to him. Welcome, Gaurav sir. Thank you so much, Anita ma'am. I'm really overwhelmed, and because thank you for the lovely introduction, and thank you Bharat National Public School for having me here to address all the parents and children. So I think without wasting our time, let's begin with today's session. And I just would like to ask one thing from everybody who are around, like when we talk about what is the most important thing in our life. So what do you think about that? Just let me know in the chat box. Right? Sure, Gaurav. I think, again, if I'll also rephrase the question for the audience here, the question, what is the most important things in your life? What do you consider the most important things in your life? You can, just share in the chat box. So just take a minute, take a pause and think, what do you think is most important? What do you want to achieve? What do you dream for in your life? Is everyone able to see my screen? Yes, your screen is visible.
as I can read the chat, people are saying air, water, health, family, friends. It's interesting to see various answers, Gaurav. Also, yeah, no, we are Right. getting various answers. People are very much, considering their homes, their vacations, their friends, family as the most important thing. That is very, and their dreams also. Their Exactly, exactly, various exactly. answers here. Their job, their work, their business. Right, right, right. So we have got a lot of answers from people. So let me just share with you that I have conducted a lot more sessions on this topic. So let me just share you what are the various kinds of answers I have got. Right, just a second. Yes. So when we talk about important things in our life, people have shared that a good 9 to 5 job. I think we all agree with that part. A handsome salary, again, that is interrelated. 5 days working and 2 days off. I think everybody needs that. A 3 to 4 BHK home, like your dream home. Loving and caring spouse and kids. As many people have mentioned that their family and friends. Vacations, right? What else? Your health, right? Because a And lot it's of people have mentioned answer this. also here in the chat. Yes, yes. Also, we got it. Right, right. And I'm glad to see that a lot of people are aware that they consider their health is one of the important aspect in their life. So let's just see how health has been ignored by most of us. Why health has been ignored by most of us? Pressure of earning a good livelihood. I believe you can agree on that. Pressure of performing better at workplace, promotion, and good salary. That is why somewhere health has been left. Pressure of having your own house, pressure of providing good education to your children, pressure of maintaining a living standard. I think these all are related to having a good living standard, providing a good future to your children, providing a good future to your family. So that is why somewhere, I mean, we are working day in and day out for achieving those things. But we have to remember that health is also one of the important aspect, right? But now the fact is, you cannot make money if you get sick or bedridden. I know you people have goals, but you need to understand that you cannot make money if you get sick or bedridden. You won't be able to perform better in your job if you're not healthy, and also cannot expect a good salary as well. Without good salary, how would you be able to afford a good house and provide better education to your children? And without all, you won't be able to have a balanced life, whether it is personal or professional, because you won't have that peace of mind. And trust me, without good health, nothing is worth earning, because you won't be able to enjoy anything with bad health. I hope you all agree with me. Somewhere, in our daily lives, in pursuing our dreams or goals. So somewhere, health has been ignored, right? But the fact is, you know, health is related to everything which you are doing, right? It's all about your priority. If you make health one of your priority, then it's not difficult to maintain a good health. It's not difficult to find out time for your own health and fitness.
It's all about priority because you have prioritized your dreams, right? आपने अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटाइज कर लिया है कि आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए, आपको अच्छा एक कैरियर चाहिए, बट इट इज वन ऑफ द प्रायोरिटी. आपको एक अच्छी हेल्थ भी चाहिए, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे. Now let's see some common doubts what people have for their own health and fitness, right? Health and fitness is complex. ये एक common doubt है जो लोगों के mind में होता है, but it is not complex. I'll tell you how it is easy and how you can make it simple for yourself, right? It's a luxury, so we cannot afford it. No, it is not. I know this notion has come from the dietitians, which are charging very high amount for the diets and suggesting you the exotic foods. But let me tell you, आप जो रेगुलर खाना खाते हैं उसके थ्रू भी आप एक अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं. You need not to go for fancy foods, fancy diets. It's difficult. We don't know how to start or do this. I'll tell you how to do this in the simplest way. Too much knowledge is required. No, you don't require too much knowledge. Too much knowledge is required only for those who want to train other people. But if you want to maintain your own health, too much knowledge is not required. I mean, it is very simple. How to manage time? As I mentioned, it's all about priority. If you make your health one of your priority, it will be easy to manage your time and to maintain your health as well. Only required for overweight, obese or fitness freaks. ये भी एक बहुत कॉमन चीज है जो हम देखते हैं आजकल कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उनको ही चाहिए, या तो जो ओवरवेट हैं, जो ओबीज हैं, या जो फिटनेस फ्रीक हैं, वही मतलब हेल्थ और फिटनेस की परवाह करते हैं, या वही इसके पीछे भागते हैं. बट सिंस लाइक नाउ यू कैन सी हाउ द सिचुएशन इज, जो अभी सिचुएशन, करंट सिचुएशन चल रही है, जो पेंडेमिक चल रहा है, आई थिंक यू कैन रियलाइज and you are realizing that it is required for everybody. Exercise is uncomfortable. Most of people must be thinking that exercise is uncomfortable or it is painful, right? But जब आप पहले दिन स्कूल गए थे, was it comfortable? या जब आप पहले दिन जॉब पे गए थे, क्या तब कंफर्टेबल था? नहीं था. बट जब आप कॉन्टिन्यूसली जाने लगे तो इट बिकम्स अ हैबिट, और आपको अच्छा लगने लगा, एंड इट बिकम्स कंफर्टेबल. कैनॉट ईट द सेम फूड डेली. ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आपको एक ही तरह का फूड रोज खाना है. ऐसा भी नहीं है. यू कैन हैव वैरायटी ऑफ फूड्स. कैनॉट रेस्ट्रिक्ट माई क्रेविंग्स. काफी लोगों को लगता है कि अरे अगर हेल्दी रहना है तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी. छोड़नी नहीं है कोई भी चीज. I'll tell you, I mean, I have just given you the brief. I'll tell you in further slides how you can do everything in the simplest way. I hope everyone is following me. Now, what all is required? Let's see. A very few changes in your lifestyle. जो भी आप, जिस भी तरह का लाइफस्टाइल आपका है, उसमें बहुत ही छोटे से चेंजेस चाहिए. It's not complex. A positive mindset, of course. If you want to achieve something, a positive mindset is required. Discipline and consistency. Without consistency, of course, you cannot achieve anything without consistency. And you have to be disciplined a bit. Patience. You have to be patient. You have to be patient to see the real changes in your life. Right? Because health or fitness is a long-term goal. It's not, a few months game. It's not a few months trend. Right? So, Abhi, I have just explained these points in the brief. I'll explain all these things in detail in my further slides. Right? Let's start. But before starting, I just would like to
tell you that maybe many parents have a lot of questions. So I'll be taking questions at the end of the session. In case if we'll be short of time, then I would request you to shoot out an email to me. I'll try my best to answer all those questions, or you can either message me on any of my social media handles, right? So I would request Nitika to post the coordinates, so that in case if any question is left out, then we can probably get back to them later. So let's just start. A few changes in your lifestyle. What are those? Number one, nutrition. जो आप डेली खाते हैं उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस, वेरी स्मॉल चेंजेस. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये आप रोज खाते हैं. डोंट गेट इनटू द टेक्निकलिटीज, राइट? आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स फॉर यू. ये आप रोज खाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आप डेली खाते हैं, चावल से, रोटी से, ब्रेड से, दाल से, राइट? प्रोटीन भी आप डेली खाते हैं, मिल्क से, चीज से, पनीर से, चिकन, एग्स. फैट्स भी आप डेली लेते हैं, चाहे आप बटर की फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप ऑयल की फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप घी की फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप नट्स, सीड्स की फॉर्म में ले रहे हैं. फैट्स भी आप रोज खाते हैं. विटामिन, मिनरल्स, ये भी आप रोज लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फॉर्म में. Let me tell you, Indians are protein deficient. This is, one of the fact on the basis of research. Indians are protein deficient, and protein is one of the important nutrient which performs, more than 90% functions in our body. Everything, it is required everywhere in our body. Skin, आपकी जो skin है, that is the largest organ in the body, which is also made up of a type of protein, right? So protein has a very essential, protein plays an essential role in your daily lives, in your health. It's not about less food, it's all about right food. कम नहीं खाना है, सही खाना है. Right food with right quantity, that is important. सही खाना है, सही क्वांटिटी में खाना. Don't overeat your food. ये जनरली हमने देखा है कि हम लोग अपना फूड जो है वो ओवर ईट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी पसंद की चीज है, जो भी हमें अच्छा लगता है खाना, तो हम काफी बार उसको ओवर ईट कर देते हैं. ओवर ईटिंग नहीं करनी है, आप उसका एसेंस खत्म कर रहे हैं, राइट? हो सकता है अगर आप बार बार ओवर ईट करें उस चीज को, तो आप अगली बार उसको एंजॉय ना कर पाए उस तरीके से. सो व्हाट यू हैव टू डू, मॉडरेशन. मॉडरेशन इज द की. हर चीज आपको मॉडरेशन में लेनी है, राइट? ना कम ना ज्यादा. अगर आप सारी चीजें मॉडरेशन में लेंगे, तो you'll see the benefits of all and you'll enjoy everything. A few tips regarding eating. Include one portion of protein in each meal. जैसे मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और Indians are really deficient. मैं अपने घर में देखता हूँ इस चीज को, right? My parents, they don't take enough protein. लेकिन जब आप ओल्ड एज में जाते हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर योर मसल्स, फॉर योर बोन्स. आप ओल्ड एज में जाते हैं तो आपको फ्रैक्चर्स और ये सारी चीजें होने के रिस्क रहते हैं. बट इफ यू हैव गुड डाइटरी प्रोटीन इनटेक, तो आप वो रिस्क कम कर सकते हैं. लिमिट जंक एंड प्रोसेस्ड फूड. ये आपको लिमिट करना है. मैं मना नहीं कर रहा हूं खाने के लिए किसी भी चीज को, लेकिन लिमिट करना है, क्योंकि जंक और प्रोसेस फूड को बनाया इस तरीके से जाता है कि आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा शुगर कंटेंट होता है, सॉल्ट कंटेंट, सोडियम, राइट? और ज्यादा शुगर से डायबिटीज का खतरा है, ज्यादा सोडियम और सॉल्ट से आपको ब्लड प्रेशर का खतरा है. तो लिमिट योर जंक एंड प्रोसेस फूड.
जैसे मैंने पहले बताया, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग इन मॉडरेशन. लिमिट योर शुगर इनटेक. शुगर इनटेक भी आपको लिमिट करना है, छोड़ना नहीं है, लिमिट करना है. अगर आप लिमिट कर सकते हैं, जैसे आप चाय पीते हैं, उसमें अगर आप 1 चम्मच चीनी ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए. धीरे धीरे आपकी बॉडी अडेप्ट करना शुरू हो जाती है. अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो यू कैन यूज द ऑल्टरनेटिव नेम्ड स्टीविया. स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर होता है. स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर होता है जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. वो ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है. एंड आप देखेंगे शुगर फ्री जो कंपनी है उसका आप स्टीविया यूज कर सकते हैं. ये शुगर से बहुत ज्यादा परसेंटेज में स्वीट होता है, तो ये बहुत कम डलता है. इट इज वेरी सेफ एंड नेचुरल स्वीटनर. यू कैन यूज दैट. एड 1 to 2 serving of fruits and vegetables in your diet. ये जरूर करना है आपको, क्योंकि जो आप अभी कंडीशन देख रहे हैं पेंडेमिक की, आपकी बॉडी को सारे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं. तो आपको 1 से 2 सर्विंग जरूर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ऐड करनी है. और वेजिटेबल्स मैं ये आपको बता रहा हूं कि वेजिटेबल्स वो नहीं जो आप रोज खा रहे हैं सब्जी बना के. उसमें क्या होता है, हमने अपने इंडियन होम में घरों में देखा है कि हम लोग हाई फ्लेम पे अपना फूड पकाते हैं. हाई फ्लेम पे फूड पकाने से ज्यादातर न्यूट्रिएंट किल हो जाते हैं, तो आपको विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे. जो चीजें आप थोड़ा रॉ खा सकते हैं वो रॉ खाइए. जो चीजें आप सेमी कुक्ड खा सकते हैं वो सेमी कुक्ड खाइए. और ट्राई टू यूज मीडियम फ्लेम फॉर कुकिंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव ऑयल इन योर मील्स. काफी लोगों की आदत होती है ज्यादा ऑयल खाने की, क्योंकि टेस्ट बन जाता है उससे, लेकिन प्रॉब्लम भी उसी से है. छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर चीज जरूरी है आपकी लाइफ में, आपकी डाइट में, आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए हर चीज जरूरी है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एवरीथिंग इज नेसेसरी, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कुछ. इंक्लूड मोर होल फूड्स. होल फूड्स का मतलब है जो कि सोर्स से निकला है. मतलब जैसे आटा है, उसका सोर्स क्या है, व्हीट. तो आपको होल फूड ज्यादा खाने हैं, यानी कि आटा, रेदर देन रिफाइंड फूड यानी कि मैदा. रिफाइंड फूड लिमिट करना है, क्योंकि होल फूड्स आपको ज्यादा देर तक एनर्जी प्रोवाइड करता है. रिफाइंड फूड आपकी बॉडी में गया, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिली, लेकिन उसके बाद खत्म, आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है. तो ज्यादा होल फूड्स अपनी डाइट में डालिए. ड्रिंक इनफ वाटर, ये बहुत जरूरी है, काफी लोग इग्नोर करते हैं. आपको पता है ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है, तो पानी की बहुत जरूरत है, राइट. उससे याद आया, लेट मी सिप इन माय वाटर. तो इसका एक हैक मैं आपको देता हूं पानी का. कीप अ वाटर बॉटल विद यू, क्योंकि काफी लोग भूल जाते हैं पानी पीना. एंड क्या है कि हमारी बॉडी हर टाइम हमें सिग्नल नहीं देती है इस चीज का कि आप प्यास लग रही है. आपको कई बार आपको प्यास लग रही होती है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रही है, आप खाने चले जाते हैं, राइट. आप उस टाइम पे पानी पी के देखिए, क्या पता आपकी भूख, आपको जो लग रहा था कि भूख लग रही थी, हो सकता है कि आपको रियली में पानी से वो सेटिस्फेक्शन मिल जाए. तो कीप अ वाटर बॉटल विद यू, जब भी खाली हो उसको भर के दोबारा रख लीजिए. फ्यू टिप्स टू अवॉइड ओवर ईटिंग. जो लोग ओवर ईट करते हैं फूड को, कुछ टिप्स उनके लिए. ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री. तभी खाना है जब आपको भूख है. ऐसा नहीं, क्योंकि हम ना सारी चीजें टाइम से रिलेट कर देते हैं. अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी लंच का टाइम है, अभी स्नैक का टाइम है, अभी चाय का टाइम है, तो हमको खाना ही खाना है. क्यों खाना है, आपकी बॉडी तो नहीं मांग रही है. अगर किसी टाइम पे आपकी बॉडी नहीं मांग रही है तो क्यों खाना है, राइट. ईट अंटिल यू आर 80% फुल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होता है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं, हमको लग रहा है हम खा लें, भूख लग रही है अभी, बट क्या है कि हमारा एक ब्रेन को एक हंगर हार्मोन होता है, वो सिग्नल देता है कि आप फुल हो गए हैं. लेकिन वो सिग्नल पहुंचते पहुंचते 20, 25, 30 मिनट लग जाते हैं. लेकिन जनरली ऑन एन एवरेज सभी लोग अपना खाना फिनिश कर लेते हैं 10 से 15 मिनट में. तो उनको पता ही नहीं चलता, और रियलाइजेशन होती है बाद में, अरे यार ज्यादा खा लिया.
राइट? तो ईट अंटिल यू आर 80% फुल। आप देखेंगे, खुद नोटिस करेंगे, जब आप 80% खाएंगे और वो 20% नहीं खाएंगे, आपको 10 मिनट बाद खुद ही वो सेटिस्फेक्शन, सेटाइटी महसूस होगी। यूज स्मॉल प्लेट्स। अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं वो मैनेज कर पा रहे हैं 80% या ये सारी चीजें, स्मॉल प्लेट्स यूज कीजिए। बट स्मॉल प्लेट्स में भी नहीं कि उसको ऊपर तक भर लिया। स्मॉल प्लेट होगी तो आप ऑफ कोर्स कम लेंगे, कम खाएंगे, बट स्टार्व भी नहीं करना अपने आप को। ऐसा नहीं कि भूख लग रही है, खाना ही नहीं है। ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ज्यादातर हम लोग जो खाते हैं, टीवी देख रहे हैं तब खा रहे हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तब खा रहे हैं, या मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं तब खा रहे हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता है कि आप कितना खा चुके हैं। तो ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। 20 मिनट की बात है, ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। च्यू योर फूड प्रॉपरली, ये आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन हम अभी भी इस चीज को शायद कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। इंजॉय ईच एंड एवरी बाइट ऑफ योर मील। आप अगर एक एक बाइट अपनी मील की इंजॉय करेंगे, आप देखेंगे खुद ही कि आपकी सेटाइटी, आपकी सेटिस्फेक्शन काफी पहले आ गई है, राइट? एंड द बोनस इज इंक्लूड प्रोटीन इन ईच मील, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको देर तक फुल रखता है, और प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि डाइजेस्ट होने में आपकी एनर्जी यूज करता है, कैलोरीज बर्न करता है। तो हमें तो ऐसी चीज चाहिए जो कैलोरी बर्न करे, राइट? नाउ द नेक्स्ट चेंज इज फिजिकल एक्टिविटी। डू वन फिजिकल एक्टिविटी डेली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए, बहुत जरूरी है। स्टार्ट विथ 20 to 25 मिनट्स, ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट से स्टार्ट कीजिए। चाहे किसी भी फॉर्म में कीजिए, चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे एरोबिक होम वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे डांस कर रहे हैं, चाहे ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, कोई भी, लेकिन बहुत जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आई विल टेल यू, मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बेनिफिट्स। ट्रैक योर फिजिकल एक्टिविटी ईच डे। हर दिन आपको ट्रैक भी करनी है कि आपने की। जब आप ट्रैक करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगी वो चीज। जो लोग किसी भी टाइप की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ट्राई टू कंप्लीट 8,000 to 10,000 स्टेप्स एवरी डे। सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप इसके लिए या तो फिटनेस बैंड यूज कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन स्टेप ट्रैकर की डाल सकते हैं, और आप जब कॉन्शियसली एक्टिव रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कभी 8,000 10,000 स्टेप्स हो गए आपके। अगर 8,000 10,000 नहीं भी हो पाते हैं, 5,000 6,000 करिए, बिकॉज प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। अगर आप परफेक्शन में लगे रहे कि यार नहीं 8,000 नहीं हुए, करना ही नहीं है, ये नहीं करना है। प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन। मूव एज मच एज यू कैन। योर बॉडी इज मेड टू मूव, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आपकी बॉडी मूव करने के लिए बनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो भी व्हीकल है, अगर आप उसको आइडल छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं 1 महीने 2 महीने साल भर, क्या होगा? बैटरी डाउन, पार्ट्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, टायर फ्लैट, टायर खराब हो जाएंगे। दैट्स व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी जब आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करते हैं, जब आप अपनी बॉडी के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस। और आपने देखा होगा, किसी के जॉइंट में पेन है, किसी को मसल पेन है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज like a car is designed to be driven, your body is also made to move. I hope you understand this. Exercise reduces the risk of severity of COVID-19. अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे, तो ये एक रिसर्च अभी पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया जो भी सीवियर केसेस हो रहे हैं कोविड-19 के, एक्सरसाइज काफी हद तक उसको रिड्यूस करती है। एक्सरसाइज बिल्ड्स योर इम्यूनिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी भी फॉर्म में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करनी है। Now there are few benefits that I would like to tell you. As I told you कि there are hundreds of benefits. I have listed a few which you can relate to.
इट एलिवेट्स योर मूड। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करती है, तो आपका मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आप देखेंगे इट इंक्रीजेस योर एनर्जी लेवल्स। आप जब एक्सरसाइज करेंगे आप खुद देखेंगे कि आप पूरे दिन आपका एनर्जी लेवल ही अलग है। इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। ऑफ कोर्स जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो अलग स्ट्रेंथ और स्टेमिना आपकी बॉडी में होता है। लेस रिस्क ऑफ डिजीजेस, ऑफ कोर्स these are all proven scientific. I'm not telling you anything which is not proven. You feel good about your body, क्योंकि जब आप चेंजेस देखना शुरू करेंगे अपनी बॉडी में, आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया, आपका स्टेमिना बढ़ गया है, यू फील मोटिवेटेड। इट इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको अच्छी नींद आती है और स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपके बहुत स्लीप से आपके सारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, सारी बॉडी में जो भी है आपकी रिकवरी मेंटेनेंस सारी स्लीप से होती है। लेस स्ट्रेस, अगर आप अच्छा सोएंगे तो कम स्ट्रेस होगा, कम स्ट्रेस होगा तो ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स व्हिच वी कैन रिलेट इन आवर रियल लाइफ। फ्यू मोर चेंजेस में, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर इनटेक। आप ऑन एन एवरेज एक एडल्ट के लिए आप 3.5 लीटर्स वाटर एवरी डे, एम फॉर दैट। जिन लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है उनका वाटर इनटेक भी, वाटर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, बट एम फॉर 3 to 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। स्लीप साइकिल, 7 से 8 घंटे जरूर सोना है। ये जो भी सोशल मीडिया एरा चल रहा है जिसमें हम लोग नेटफ्लिक्स, फेसबुक, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं रात को भी, दैट हैम्पर्स आवर स्लीप। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत नेसेसरी है। जैसे मैंने कहा, आपकी बॉडी हर दिन मेंटेनेंस और रिपेयर करती है। जब आप डीप स्लीप में होते हैं आपका हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, आपका ब्रेन बहुत कम परसेंटेज पे फंक्शन कर रहा होता है और बाकी सब मेंटेनेंस और रिकवरी चल रही होती है आपकी बॉडी में। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है एडल्ट के लिए। बच्चों के लिए 9 घंटे की नींद जरूरी है। एक्सपोजर टू सनलाइट, ये लोग नहीं करते हैं। जिस भी टाइप का माहौल है अभी, जितना भी अर्बनाइजेशन हो गया है और जिस तरह की भी जॉब्स हैं लोगों की, लोग नहीं करते हैं, बट आपको सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए क्योंकि उससे आपको नींद भी अच्छी आती है। दूसरा, आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी इज क्रूशियल फॉर योर इम्यूनिटी, विटामिन डी इज क्रूशियल फॉर योर बोन्स। तो सन का एक्सपोजर भी जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट, विदाउट पॉजिटिव माइंडसेट you cannot achieve anything, right? आपका mind is like a garden, okay? Your thoughts are like seeds and you can grow flowers or you can grow weeds. It's up to you. जो भी आप थॉट देंगे अपने माइंड को, आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेता है एंड फिर वही आपके डिसीजन में इन्फ्लुएंस करते हैं। जो भी इन्वायरमेंट चल रहा है, हमें पॉजिटिव रहना है। जितने लोग पॉजिटिव रहेंगे, आई कैन टेल यू, दे विल विन दिस वॉर। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक अब्राहम लिंकन की कोट है, लाइक डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ and what you want the most. What you want now is instant gratification, but what you want the most is the long term thinking, the long term goal, and your health and fitness is a long term goal. So you have to be self disciplined as well. Patience, to see some real changes in your fitness and health, you have to be patient. ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन एक्सरसाइज करी और 4 दिन क्लीन ईटिंग करी, ये सारे चेंजेस किए, आपको लगा यार कुछ नहीं हो रहा है।
ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंटली स्मॉल स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं और पेशेंट रहना पड़ता है, राइट? एंड दीज ऑल आर इंटररिलेटेड. Let me just tell you some food sources for your immunity. जो भी अभी जिस भी तरह का माहौल हम देख रहे हैं उसमें आपकी इम्यूनिटी is something which should be in a good state. तो वो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट? सबसे पहला विटामिन सी. विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है. आप सबको पता भी होगा कि विटामिन सी से जो है आपके बहुत सारे आप इन्फेक्शंस प्रिवेंट कर सकते हैं. विटामिन सी किस किस में आपको मिलेगा? गुआवा में, येलो बेल पेपर, कीवी, ब्रोकली, पपाया, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, स्वीट पोटैटोज, ऑरेंजेस, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं. और विटामिन सी आपको डेली लेना है किसी भी फॉर्म में. ज्यादातर फूड्स में आपको मिलता है विटामिन सी, लेकिन इस टाइम पे आप कोशिश कीजिए आप कॉन्शियसली विटामिन सी ज्यादा लीजिए. विटामिन डी, जैसे मैंने आपको बताया, सनलाइट बहुत जरूरी है. फ्री सोर्स दिया है भगवान ने आपको सनलाइट का, क्योंकि बाकी ये ज्यादातर आपको जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है. लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए सनलाइट इज अ रियली गुड सोर्स. उसके अलावा एग योक, सैल्मन, कैन ट्यूना, कोड लिवर ऑयल, मशरूम्स, बट इन सब में क्वांटिटी बहुत कम होती है. तो यू नीड टू स्पेंड 10 मिनट्स एवरी डे इन सनलाइट. 10 मिनट नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, 5 मिनट कीजिए. किसी दिन वो भी नहीं निकल पाते हैं तो वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा बैठ जाइए, बट दैट इज रियली रिक्वायर्ड. और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% ऑफ इंडियंस आर विटामिन डी डेफिशिएंट. 90% ऑफ इंडियंस. अगर ये रेशो कम होता तो शायद जो भी केसेस हम देख रहे हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती. एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट वो कंपोनेंट होता है जो आपकी बॉडी को बाहर के इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरसेस से बचाते हैं. वो आपको फूड से मिलते हैं. लाइक योर फूड इज रियली मेडिसिन. एंटीऑक्सीडेंट आपको डार्क चॉकलेट में मिलता है जिसमें कि आपका 75% और मोर देन 75% कोकोआ पाउडर हो. बेरीज, सारी बेरीज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, बीन्स, बीटरूट, स्पिनच, ग्रीन टी, तुलसी, कर्क्यूमिन. कर्क्यूमिन आपको टर्मरिक में मिलता है. ये सारी चीजें आप लीजिए. इन सारी चीजों में से आप कुछ भी ले सकते हैं. मतलब विटामिन सी के सोर्सेज भी लेने हैं, डी के भी लेने हैं, आपको एंटीऑक्सीडेंट भी लेने हैं. जिंक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी बॉडी के फंक्शंस के लिए. जिंक आपको मिलता है लेग्यूम्स में, जितनी भी तरह की दालें आप खाते हैं, सीड्स में, नट्स में, जैसे आमंड हो गया, कैश्यूज हो गया, वॉलनट्स हो गया, पीनट्स हो गया, मिल्क, एग्स, डार्क चॉकलेट. बट कोई भी चीज ज्यादा नहीं खानी है. जैसे आपने देखा अरे डार्क चॉकलेट तो अच्छे से खा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रोटीन, अगेन प्रोटीन डू मोस्ट ऑफ द रिकवरी इन द बॉडी. रिपेयर, मेंटेनेंस, बिल्डिंग, आपकी मसल बिल्डिंग, जो भी जितने भी रिपेयर, मेंटेनेंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सब प्रोटीन के थ्रू आपकी बॉडी में होते हैं. प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, वेजिटेरियंस के लिए भी, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी. सोयाबीन्स हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, कॉटेज चीज है, योगर्ट है, चिकन है, फिश है, बीन्स है, लेंटिल्स है, ये सारी चीजें. तो ये सारे कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो भी अभी का टाइम चल रहा है उसको देखते हुए. I think everything is clear. So let's just take few questions. Yes, Gaurav, actually we have got a few questions in the chat box as well. Okay. Or I would also request the parents who are there in the session to add on to the questions if you want to. We are left with at least, I think, almost 5 to 7 minutes, so we can take up a few questions before the session would be over. Yeah. Okay, the first question that I've got is that the news is saying to eat less carbs, carbohydrates. कम करने के लिए न्यूज़ कह रहे हैं to prevent this black fungus or something. So people want to know like how much appropriate is this to reduce carbs in your diet. देखो, कार्ब्स आपको रिड्यूस नहीं करना है. मतलब ऐसा नहीं, वो रिड्यूस करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडियन डाइट जो है वो कार्ब रिच है.
जितने भी हम फूड खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड खाते हैं। हम ज्यादा रोटी खाते हैं, ज्यादा चावल खाते हैं, राइट, ब्रेड ज्यादा खाते हैं, पोटैटो ज्यादा खाते हैं, तो ये सब कार्ब के सोर्सेज हैं। तो क्या है कि एक बैलेंस मील बनाने के लिए उसमें आपको कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, बट फैट्स में गुड फैट्स चाहिए आपको। गुड फैट्स का मतलब है जो अनसैचुरेटेड फॉर्म्स में होता है। अनसैचुरेटेड फॉर्म में मतलब आप ऑलिव ऑयल से भी मिलता है आपको, नट्स से मिलता है, सीड से मिलता है। सैचुरेटेड फैट भी जरूरी है आपके हॉर्मोन्स के लिए। सैचुरेटेड फैट आपको घी में, बटर में, सब में मिलता है। सारी चीजें जरूरी है बट इन अ बैलेंस्ड वे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कार्ब्स कम करना है, ऐसा बट ये है कि आप जब प्रोटीन का पोर्शन बढ़ाएंगे तो कार्ब का थोड़ा सा कम हो ही जाएगा। एक्चुअली ये इज वेरी ट्रू, यू नो, मैंने भी बहुत बार फील किया है कि प्रोटीन रिच हम कभी भी कुछ खा रहे हैं, जैसे घर में ना सब लोग बहुत कहते हैं राजमा खा लिए, छोले खा लिए कि बहुत भारी हो गया। एटलीस्ट वो क्या है, भारी नहीं होता है क्योंकि हमने प्रोटीन खाया तो हमें ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती है, इसलिए हमें कुछ खाने का मन नहीं करता है। वी फील फुल आफ्टर यू नो ईटिंग ऑल दिस प्रोटीन। और हमने उसको बड़ा ही ना कंसीव इस तरह से किया हुआ है कि ये बहुत भारी हो गया है, बहुत भारी हो गया है, हल्का खाते हैं। तो हल्का खाना नुकसान कर रहा है बल्कि आई थिंक, और भारी खाना फायदा कर रहा है। और कार्बोहाइड्रेट छोड़ना नहीं है। मे बी हो सकता है आपने एक एंगल देखा हो उसका, अगर उसमें ऐसा होगा तो उसमें होगा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको कम करना है, यानी कि जितने भी रिफाइंड सोर्सेज हैं, जैसे व्हाइट ब्रेड हो गया या मैदा हो गया, मैदे से बनी कोई भी चीज हो गई जो भी बाहर आपको मिलता है, बर्गर या भटूरे या जो भी मैदा से बना हुआ है, नूडल्स, रिफाइंड आपको कम करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बढ़ाना है आपको डाइट में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर होता है। फाइबर भी आपको ज्यादा देर तक फुल रखता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है। जो डायबिटीज जिन लोगों को होती है उनको जो है रिफाइंड फ्लावर तो मना ही होता है। वो इसीलिए उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देंगे तो फाइबर जो है, फाइबर की वजह से उनका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता है। Great, great. Thank you, Gaurav. There is one more question that we have here is how to take iron and protein in vegetarian form. I think it's from a parent who is a vegetarian. So just a parent wants to know that how to take iron, how to add on iron and protein in the diet. हाँ, तो आप आयरन के लिए जो है इट्स लाइक आप क्या कहते हैं, स्पिनच खा सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। आप जो है जितने भी नट्स हैं, नट्स और सीड्स में भी थोड़ा सा आयरन कंटेंट होता है। इसके अलावा आप जो भी प्रोटीन के सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया, आप मिल्क ले सकते हैं, आप चीज भी ले सकते हैं, लेकिन सब चीज में फैट कंटेंट भी होता है तो इसलिए लिमिट में लेना है आपको। पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन इज एन एक्सीलेंट सोर्स। सोयाबीन में कैलोरीज भी कम होती हैं और प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। दाल खाइए, चिकपीस खाइए, राजमा खाइए, सब ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन सोर्सेज नहीं है, बहुत प्रोटीन सोर्सेज हैं। स्प्राउट्स खाइए। Okay, thank you so much. Actually, the question had a very, you know, specification there कि without losing the taste buds. Taste buds lose नहीं करना है और iron और protein add करना है. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं सोयाबीन खाता हूँ तो आई डू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स विद दैट। ऐसा नहीं कि मैं बॉइल करके खा लिया मैंने उसको। इट्स लाइक थोड़ा सा नॉन स्टिक पैन में आप लीजिए, उसमें चाहे थोड़ा घी डालिए, चाहे बटर डालिए, बस बहुत कम क्वांटिटी में डालना है आपको। एंड थोड़ा सा वेजीज, वेजीज बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं आपको। जैसे आपका कैप्सिकम हो गया, आपका अनियन हो गया, इनको थोड़ा सा सॉटे रखिए, मतलब इनका एसेंस किल मत कीजिए, इनको सेमी कुक्ड रखिए, और उसी में सोयाबीन डालिए, और उसी में थोड़ा बहुत आप अपना जो भी सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालते हैं वो डालिए, एंड आप देखेंगे अच्छा लगता है। इट्स लाइक मतलब वेजीज जो है वो अलग ही फ्लेवर डालती है आपके फूड में। Very true, very true. Even शायद boiled soybean नहीं, we have experimented soybean in amazing forms. हमने कबाब बनाए सोयाबीन के, हमने chili soybean बनाया, क्या नहीं बनाया. You can also, you know, log into like exactly, and there are plenty of recipes available on the internet. Exactly. आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि अनहेल्दी नहीं होना चाहिए कि उसमें आपने भर के बटर डाल दिया। Exactly. Okay, there is one other question we have. What is the benefit of zinc? Yes, जिंक जो है ऑफ कोर्स आपकी इम्यूनिटी में तो हेल्प करता ही है, और जो भी जितने भी लोगों को ये कोविड अभी हुआ है, इट्स लाइक आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प करता है वो। आपकी बॉडी में जो है जितने भी टाइप्स की रिकवरी होती हैं उसमें हेल्प करता है। और मेल्स में, स्पेशली मेल्स में, एक उनका जो नंबर 1 हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको भी बूस्ट करता है।
And it also helps in your hair, in growth of your hair. And for all the ladies present here, even the males. Right. For how much time should we take sleep? स्लीप जैसे मैंने बताया 7 से 8 घंटे मिनिमम है, बच्चों के लिए 9 घंटे तक का टाइम है, तो इतना जरूर लीजिए। किसी दिन 7 घंटे नहीं हो पा रहा है तो किसी दिन आप छोड़ दीजिए, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना टाइम जरूर चाहिए होता है। क्योंकि जब आप सोते हैं तो 3 स्टेट होती है आपकी स्लीप की। तो पहली स्टेट में आप जाते हैं 10 मिनट लगते हैं आपको, दूसरी स्टेट में जाते हैं तो आपको 20 मिनट का टाइम और लगता है। जब तीसरी स्टेट में जाते हैं, जो डीप स्लीप बोलते हैं हम तीसरी स्टेट को, तो वो मेन होती है जब आपकी बॉडी में सारे रिपेयर और मेंटेनेंस फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जस्ट मतलब शायद हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, वी आर लेफ्ट विद आई ओनली। थिंक यस, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, वी हैव अनदर सेशन। तो आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चंस लेते हैं, देन वी कैन वी हैव अनदर सेशन आल्सो लाइंड अप। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस हम लोग पिक कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट यू पीपल कैन, ऑल द आई थिंक लिंक्स आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन फॉर यू पीपल, यू कैन मेल अस योर क्वेश्चंस, ठीक है, एंड योर क्वेश्चंस वुड डेफिनेटली बी आंसर्ड, बी श्योर ऑफ दैट। तो आपके क्वेश्चंस आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी यू कैन पिंग अस, तो नो इश्यूज देयर, ठीक है। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस गौरव हम ले लेते हैं। फर्स्ट, आई थिंक देयर इज a student of our school who is asking here that my father is having vitamin D deficiency, so what we should do, please tell. So बेटा, सबसे अच्छा फॉर्म इज सनलाइट, दैट इज अ फ्री सोर्स। मतलब जरूर 10 मिनट स्पेंड कीजिए सुबह में, आप सनलाइट में जरूर 10 मिनट स्पेंड कीजिए। ठीक है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आप बालकनी में बैठ जाइए या घर के वरांडे में बैठ जाइए। अगर आप फिर भी नहीं ले पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, क्योंकि लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपको नॉन-वेज फूड से ज्यादा मिलता है विटामिन डी। वेजिटेरियन फूड्स में इट्स लाइक आपको अगर फोर्टिफाइड मिल्क ले रहे हैं जिसमें फोर्टिफाइड विटामिन डी डाला जाता है तो वो ले सकते हैं आप। और उसके अलावा आपको जो विटामिन डी मिलेगा मशरूम्स में मिलेगा। बाकी सब नॉन वेजिटेरियन फूड हैं जो मैंने अभी बताए भी थे। एग्स यानी कि एग योक में मिलता है आपको, और सैल्मन, आपका कोड लिवर ऑयल, ये भी फिश का ऑयल होता है। तो इस सब में आपको विटामिन डी मिलता है, बट बेस्ट इज सनलाइट, आप उससे लेंगे। एंड विटामिन डी की जो बेनिफिट है, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, ये आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। तो अब ज्यादा भी ले लेंगे ना तो आपकी बॉडी में स्टोर रहेगा ये। वेयर जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी फ्लश आउट हो जाता है डेली, तो वो आपको डेली लेना है। Exactly. And the last question of the session only, and I think this is a very common one. What is the right time to have green tea, and how many times we should take green tea, the magic drink? It's not the magic drink. I mean, don't associate with the weight loss. Weight loss नहीं होता है ग्रीन टी से, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वेट लॉस नहीं होता है ग्रीन टी से। वेट लॉस सिर्फ होता है आपका कैलोरिक डेफिसिट से। कैलोरिक डेफिसिट मतलब आपको जितनी कैलोरीज आपका बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए उससे कम खाएंगे या उससे ज्यादा बर्न करेंगे तभी होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है और ये मार्केट में चलता आ रहा है क्योंकि ग्रीन टी वालों ने ही फैलाया है ज्यादा सेल करने के लिए। बट ग्रीन टी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, 2 बार दिन में ले सकते हैं। एक बार जो जब आप शाम को चाय पीते हैं तब ले सकते हैं। एक बार आप जो आपका लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम है उसमें भी ले सकते हैं। तो 2 बार इज गुड। Okay, that's all. I think questions are, और भी questions है, but again जैसे मैं कह रही हूँ, lack of time, we won't be able to do all the questions. But we do email us your questions. आप इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, और this I think ये हेल्प करेगा आपको। I think now over to you, Anita ma'am. Yeah, ma'am, unmute yourself. You're mute, I guess. Please unmute yourself. मैम उनको करवाना पड़ेगा अनम्यूट। Okay, sorry. हाँ, sorry. हाँ. Okay, yes. Okay, Anita ma'am, Thank you. I am leaving for the next session. ठीक है, Gaurav would be here in the session only. He would join that one later one. So thank you so much. Okay. Thank you, Nitika. Thank you so much. Thank you, Gaurav sir. It was really very enriching.